We were discussing the revisionary test paper of the Institute of Chartered Accountants of India और हमने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे. अब देखिए जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं. KPI Limited registered in state of Himachal Pradesh. It is registered in Himachal Pradesh. Has a manufacturing unit at Baddi HP. It is having a manufacturing unit at Baddi HP. The company manufactures two products, XT and ST. XT is what? Taxable, and ST is exempt. Now it's manufacturing two products, XT and ST. दो products ये manufacture कर रहे हैं, XT और ST. XT taxable है और ST exempt है. KPI Limited has furnished the following details. Machinery 1, purchased on 1st July, being used in manufacturing XT and ST. तो पहली मशीनरी जो खरीदी है 1 जुलाई को, वो दोनों के लिए काम में आ रही है, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट के लिए. तो ये दोनों के लिए काम में आ रही है. तो इस पे जितना भी अपन ने IGST पे करके आए हैं, इसका आपको इनपुट टैक्स रेट अवेलेबल हो जाएगा. ITC इज अवेलेबल, पर ये किस में आ जाएगा? एम्बिट ऑफ कॉमन क्रेडिट की एम्बिट में आ जाएगा. ये कॉमन क्रेडिट की एम्बिट में आएगा. दिस विल बी, credit will be admissible since the machinery 1 is used for manufacturing both taxable as well as exempt product, and here it will, the amount of the input tax paid will be credited where? In the electronic credit ledger, and this will be coming under the ambit of common credit, and it will be denoted by A. Then machinery 2, purchased on 1st July for being exclusively used in manufacturing XT. So now machinery 2, purchased on 1st July, is been exclusively used in manufacturing XT. यानी ये सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज को इफेक्ट करने के लिए काम में आ रही है मशीनरी. तो ये जो भी अमाउंट ऑफ उसका इनपुट टैक्स है, अमाउंट इसका आपको क्या मिल जाएगा? GST पेड. क्या हो जाएगा? ये विल बी क्रेडिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. देन मशीनरी 3rd, purchased on 1st July for being exclusively used in manufacturing product ST. exclusively किसके लिए काम में आ रही है? ये ST के लिए काम में आ रही है. ST क्या है? exempt है. XT क्या है? exempt है. तो अब ये exclusively exempt के लिए काम में आ रही है. तो amount of input tax, the amount of GST so paid, will not be what? Will not be credited to the electronic credit ledger. इसका अमाउंट जो भी GST अपन ने पे किया है, ये एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट को बनाने के काम में आ रही है. सिंस इट इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एग्जेम्प्टेड गुड्स, द अमाउंट ऑफ द टैक्स सो पेड will not be credited where? In the electronic credit ledger. Machinery 4, purchased on 1st October last year for being exclusively used in product ST. It was initially exclusively used for product ST. ST initially exempt था, ये exempt के लिए काम में आ रही थी. From 1st July, such machinery will also be used for manufacturing XT. Now, whatever amount of input tax is there, it is now coming under the ambit of क्या? Common credit, because now it will be used for manufacturing taxable as well as what? Exempt products. So here now amendment has been made in Rule 43. Whatever is the amount of input tax which has been paid on such capital goods, the same will be credited in the electronic credit ledger. It will be credited in the electronic credit ledger. And for the period for which the machine was used for exempt supplies, it was used for exempt supplies,
फॉर दैट पीरियड व्हेन इट वाज यूज्ड फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाईज, तो जितना उसका इनपुट टैक्स वर्कआउट होके आता है एट रेट ऑफ 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ यूज, वो अब TIE कहलाया जाएगा और वो अमाउंट ऐड हो जाएगा आपकी क्या आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। पहले तो क्या होता था, ये जो अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स है उसमें से वो अमाउंट रिड्यूस करके बैलेंस अमाउंट ही आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर लेके जाते थे कॉमन क्रेडिट के फॉर्म में। अब क्या है, पूरा का पूरा जो भी इनपुट टैक्स उस पर पे किया है वो किस में आ जाएगा, कॉमन क्रेडिट की एम्बिट में आ जाएगा। और 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, जितने टाइम वो एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए काम में आया था। अब यहाँ पे देखिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई, जून, 3 क्वार्टर ये काम में आया। तो 1,44,000 इंटू 5% इंटू 3 क्वार्टर्स, यानी जो इनपुट टैक्स वर्कआउट होके आता है वो कितना आ रहा है, 1,44,000 इंटू 5% इंटू 3 क्वार्टर्स, दैट इज 21,600। ये TIE है, सेम विल बी एडेड in the output tax liability. It will be added where? In the output tax liability. ठीक है। उसके बाद देखिए, तो ये 144 कॉमन क्रेडिट की एम्बिट में आ जाएगा। मशीनरी 5 परचेज्ड ऑन 1 जनवरी फॉर बीइंग एक्सक्लूसिवली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग XT। इट वाज मैन्युफैक्चरिंग XT, मतलब एक्सक्लूसिवली पहले किसके लिए काम में आ रही थी, टैक्सेबल के लिए काम में आ रही थी। एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए काम में आ रही थी, जो भी इनपुट टैक्स पे किया है would have already been credited to इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो गया होगा। अब ये किसके काम में आ रही है, एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी काम में आ रही है। फ्रॉम 1 जुलाई सच मशीनरी इज ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ST। प्रोडक्ट ST क्या है, एग्जेम्प्टेड गुड्स है, तो ये अब किसके लिए काम में आ रही है, इट्स ऑल्सो यूज फॉर व्हाट, एग्जेम्प्टेड गुड्स। तो ये 18,000 रुपए का इसका जो ये इनपुट टैक्स है, 18,000 रुपए का इनपुट टैक्स, पूरा का पूरा जो 18,000 रुपए है वो क्या हो जाएगा, कॉमन क्रेडिट की एम्बिट में आ जाएगा। मशीनरी 6 परचेज ऑन 1 जुलाई 2 years ago, वो पहले से ही किसके काम में आ रही है, 1,08,000, ये दोनों के लिए काम में आ रहा था। तो अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स तो पहले ही क्रेडिट हो चुका है। अब इसको तो आपको सिर्फ क्या है, कॉमन क्रेडिट की एम्बिट में लेना है। दिस विल बी कमिंग अंडर द एम्बिट ऑफ व्हाट, कॉमन क्रेडिट। तो अब ये पूछ रहे हैं, कंप्यूट द फॉलोइंग, द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी क्रेडिटेड वेयर इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। पहला क्वेश्चन है, क्या अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट है विच इज टू बी क्रेडिटेड इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो हम इसको इधर ही कर देते हैं या नीचे कर लेते हैं। देखिए, इनपुट टैक्स, here we are now starting the discussion. First is what, the amount of input tax to be credited to electronic credit ledger in the month of July। ऊपर अपन ने डिस्कस किया ही था। तो सबसे पहले नंबर 1 वॉज, देखिए पहली जो मशीन थी वो कौन सी मशीन थी, दैट वॉज मशीन ए, मशीन 1, जो कि काम में आ रही एक्सक्लूसिवली दोनों को प्रोडक्ट को बनाने के लिए काम में आ रही है। मशीनरी 1 परचेज ऑन 1 जुलाई। इट्स बेटर वी डू इट हेयर ओनली बिकॉज वी हैव टू से अगेन एंड अगेन
move the sheet. So we'll be discussing here only. So computation of the amount of input tax. We have to compute the amount of input tax credit to be credited to electronic credit ledger. First was machine 1. Machine 1 used for effecting taxable supplies as well as exempt supplies. It's purchased on 1st July. The same has been purchased on 1st July. Say, whatever the amount of input tax will be there, the amount of input tax will be credited to electronic credit ledger. So how much amount of input tax is there, the same will be credited to the electronic credit ledger in such a case. देखिए कितना इनपुट टैक्स है इस पे. जो इनपुट टैक्स वर्कआउट होके आ रहा है, वो कितना इनपुट टैक्स वर्कआउट होके आ रहा है. एक सेकंड. तो देखिए थोड़ा सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है. तो 72,000 रुपीज का ये क्रेडिट है. ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा. दिस इज व्हाट 72,000 रुपीज. फिर दूसरा देखिए, दूसरा कितना आ गया. दूसरा क्या है, सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है. हियर second is machinery 2 purchased on 1st July being exclusively used in manufacturing product XT. तो ये मशीनरी 2 है, ये परचेज हुई है कब, 1st जुलाई को, और ये एक्सक्लूसिवली यूज हो रही है किसमें, इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट XT. तो इसका XT यानी टैक्सेबल के लिए काम में आ रही है, ये टैक्सेबल के लिए काम में आ रही है. तो इसका भी इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, because it is exclusively used in manufacturing taxable supplies. Here machinery, machine second, machine 2 used exclusively used for effecting what, taxable supplies. मशीन 2 एक्सक्लूसिवली किसके लिए काम में आ रही है, फॉर इफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाईज. द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स will be credited to electronic credit ledger. एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए आ रही है काम में. तो एनी मशीन विच हैज बीन यूज एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज से इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज, वो क्या हो जाएगा, उसका जो क्रेडिट है वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर क्या है, क्रेडिट कर दिया जाएगा. हाउ मच अमाउंट ऑफ क्रेडिट वाज, इट वाज 36,000. तो 36,000 विल बी क्रेडिटेड वेयर, इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. 36,000 का क्रेडिट कहाँ क्रेडिट हो जाएगा, इधर इसमें क्रेडिट कर दिया जाएगा 36,000 रुपीज. फिर जो नेक्स्ट आता है वो आपका क्या आ रहा है,
Machine third, purchased on 1st July for being exclusively used in exempt product. So machine third, exclusively used for effecting exempt supplies. Yeah, the amount of input tax will not be credited to the electronic credit ledger. क्योंकि ये किसके लिए काम में आ रही है? एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट के लिए काम में आ रही है, तो इसका अमाउंट क्रेडिट नहीं होगा. फिर देखिए नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ रहा है हमारा मशीन थर्ड, तो हो गई मशीन फोर्थ. परचेज ऑन 1st October लास्ट ईयर, इनिशियली यूज फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाईज, अब टैक्सेबल के लिए भी काम में आ रही है, तो मशीन फोर्थ है. मशीन फोर्थ, machine fourth, which was initially used for effecting exempt supplies. किसके लिए काम में आ रही थी ये? exempt supplies के लिए काम में आ रही थी. now used for effecting taxable supplies also. ये किसके लिए काम में आ रही है? टैक्सेबल सप्लाईज के लिए भी काम में आ रही है. तो अब क्या है? द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स, अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स है, will be credited to the electronic credit ledger. अब पूरा का पूरा अमाउंट जो है ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर इसका क्रेडिट हो जाएगा. कितना अपन ने जो टैक्स पे किया है इस पे, ये आ रहा है आपके 1,44,000 रुपीज. तो ये 1,44,000 यहाँ क्या हो रहा है? क्रेडिट कर दिया जाएगा. 1,44,000 रुपीज. तो हमारा कितना अमाउंट आ गया है जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर क्रेडिट करने की बात है? एक तो 72 आ चुका है, एक 36 आ चुका है, एक 144 आ चुका है. फिर आगे देखिए, फिर नेक्स्ट थी हमारी मशीन 5. मशीन 5 which was purchased on 1st January exclusively for taxable supplies. फ्रॉम 1st जुलाई ये एग्जाम के लिए भी काम में आ रही है. मशीन 5, मशीन 5th, which was initially used for effecting taxable supplies. तो इसका क्या है? द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स हैज ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड. जब खरीदी थी तभी क्रेडिट हो गया टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. अब तो ये कॉमन क्रेडिट में आएगा. अभी तो अपने को सिर्फ ये अमाउंट निकालना है कि कितना अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर क्रेडिट किया. और फिर एक क्या है? मशीन 6 जो 1 जुलाई को 2 साल पहले खरीदी थी, दोनों के लिए काम में आ रही थी. मशीन 6 मशीन 6 परचेज्ड 2 years बिफोर.
used for taxable as well as exempt supplies. टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों के लिए काम में आ रही है, इसलिए द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स has already been credited to the electronic credit ledger. इसका भी कुछ नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहे थे कि कितना इनपुट टैक्स क्या है क्रेडिट हो जाएगा इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो आईटीसी टू बी क्रेडिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर for the month of July, ये हमारे अमाउंट्स आ गए। देखिए, एक तो आ गया 72,000 मशीन फर्स्ट का, एक सेकेंड मशीन का आ गया 36,000 रुपये 36,000, और एक जो मशीन फोर्थ का आ गया 144। तो ये हो गए 2,52,000 रुपये, 252। तो ये अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स जो अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर क्रेडिट हुआ है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन इनका है वो क्या पूछ रहे हैं, देखिए। नेक्स्ट पूछ रहे हैं ये कि अमाउंट ऑफ इनएलिजिबल, द अमाउंट ऑफ व्हाट, इनएलिजिबल क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। कितना अमाउंट टीआई है इन एलिजिबल क्रेडिट। तो अपन ने देखा ही था, द अमाउंट ऑफ इन एलिजिबल क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, टीआई मांग रहे हैं। और टीआई का मतलब वो है जो मशीन 4 का जितना टाइम अपन ने एग्जेम्प्ट सप्लाईज को इफेक्ट करने के लिए काम में लिया वो। तो ये देखिए, अपन ने वर्कआउट किया था, टीआई 1,44,000 था उसका, मशीन फोर्थ का 5% पर क्वार्टर, 3 क्वार्टर का ये टीआई वर्कआउट किया था अपन ने, वो आया टीआई 21,600। ये अमाउंट आ गया 21,600। फिर देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द अमाउंट, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ व्हाट, द कॉमन क्रेडिट, टीसी मांग रहे हैं अभी ये। तो अब ये वर्कआउट कर लेते हैं हम, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ व्हाट, द कॉमन क्रेडिट। कंप्यूटेशन ऑफ द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कॉमन क्रेडिट। इस बार रूल 43 में अमेंडमेंट आया है, उसी की हिसाब से ये क्वेश्चन इन्होंने दिया है। तो पहला तो देखिए, जो मशीन पहली है, फर्स्ट मशीन अपन देख रहे थे, वो आपके दोनों के लिए काम में आ रही थी। तो एक तो वो आ जाएगा कॉमन क्रेडिट की एम्बिट में, दैट इज व्हाट, नंबर 1, value of A for machinery first, value of A for machinery first, which is used for effecting taxable supplies as well as exempt supplies, दोनों के लिए काम में आ रही है मशीन फर्स्ट। उस पर कितना इनपुट टैक्स था, 72,000 रुपीज़ था। तो ये कॉमन क्रेडिट की एम्बिट में आ रहा है। फिर देखिए दूसरा जो था वो आ रहा है हमारे मशीन फोर्थ का आएगा,
मशीन फिफ्थ का आएगा और मशीन सिक्स का आएगा। फोर्थ फिफ्थ सिक्स, फोर्थ का है 144, फिफ्थ का 18,000 है और सिक्स का 1,08,000 है। तो मशीन फोर्थ, फिफ्थ और जो सिक्स्थ है, पूरा इनपुट टैक्स अब क्रेडिट किया जाता है। नंबर 2 है वैल्यू ऑफ ए फॉर मशीन फोर्थ, which was earlier used for effecting exempt supplies, जो पहले किसके लिए काम में आ रही थी, exempt supplies के लिए काम में आ रही थी, now used for taxable supplies also। अब किसके लिए काम में आ रही है, टैक्सेबल सप्लाईज ऑल्सो। उसका इनपुट टैक्स वर्कआउट हो गया, आ रहा था कितना, 1,44,000 रुपए। फिर एक थी मशीन फिफ्थ, वैल्यू ऑफ ए फॉर मशीन 5, मशीन 5 जो पहले विच वॉज earlier used for effecting exclusively for effecting किसके लिए काम में आ रही थी, टैक्सेबल सप्लाईज के लिए काम में आ रही थी। पहले किसके लिए काम में आ रही थी, टैक्सेबल सप्लाईज के लिए काम में आ रही थी, एंड नाउ यूज फॉर इफेक्टिंग एग्जेम्प्ट सप्लाईज ऑल्सो। Effecting exempt supplies also। ये exempt supplies के लिए भी काम में आ रही है। कितना है मशीन 5 का अमाउंट, देखिए मशीन 5 का 18,000 है और मशीन 6 का 1,08,000 है। तो ये आ जाएगा मशीन 5 का। $18,000 और वैल्यू ऑफ ए फॉर मशीन 6th which was used for taxable as well as exempt supplies from when it was purchased initially, 1,08,000। तो ये पूछ रहे कॉमन क्रेडिट कितना हो गया, ये आ गया आपका कॉमन क्रेडिट टीसी। टोटल कॉमन क्रेडिट आ जाएगा आपका कितना, 72,000 प्लस 1,44,000 प्लस 18,000 प्लस 1,08,000, 3,42,000 रुपीज आपका क्या आ रहा है, कॉमन क्रेडिट आ रहा है। फिर आगे क्या पूछ रहे हैं देखिए, ये आगे पूछ रहे हैं अमाउंट कॉमन क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो कॉमन क्रेडिट, अब इसमें देखिए हमारी वैल्यूज दे रखी हैं क्या इन्होंने, जो अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं एक्सटी और एसटी। कॉमन क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई निकाल रहा है इनको, कॉमन क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स कितनी लेते हैं अपन, 5 साल लेते हैं। तो कॉमन क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई कितना आ जाएगा, कॉमन क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 342 डिवाइडेड बाय 60, ये टीएम हो जाएगा। तो 3,42,000
डिवाइड बाय 60, 5700 ये कॉमन क्रेडिट है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो इन्होंने तो इतना ही पूछा है, अब इसमें कितना एग्जाम का टर्नओवर है, कितना टैक्सेबल का टर्नओवर है, ये इन्होंने नहीं बताया। अदरवाइज उसके हिसाब से फिर अपने को कितना अमाउंट रिवर्स करना पड़ता वो अपन निकाल लेते। सपोज करो 10 लाख एग्जाम का टर्नओवर होता, 15 लाख टैक्सेबल का टर्नओवर होता, तो इनटू 10 लाख डिवाइड बाय 25 लाख, ये अमाउंट क्या हो जाता, ऐड हो जाता किसमें, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अंदर। टी होता है, दैट सेम विल बी एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट विच हैज बीन मेड इन रूल 43। अब जो पहले जैसे अपन इनपुट टैक्स क्रेडिट को 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ से रिड्यूस करके फिर उसको अपन क्या है कॉमन क्रेडिट की एम्बिट में लाते थे, अब ऐसा नहीं है। जितना भी इनपुट टैक्स आपने मशीन पे किया है वो अब आप कॉमनली यूज होने लग गई है, तो उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, कॉमन क्रेडिट की एम्बिट में आएगा। और जो रिवर्सल की बात है 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, जब एग्जाम टैक्सेबल के लिए भी काम में आने लग जाता है तो फिर उस केस के अंदर वो टीआई मान के ऐड किया जाता है अलग से आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अंदर। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, और यही अमेंडमेंट अपन ने भी जो अपनी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है उसके रिलेशन में क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूरा एक क्वेश्चन, और उसमें अपन ने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भी पूछी है। तो दैट मॉक टेस्ट पेपर जो फर्स्ट जीएसटी का मॉक टेस्ट पेपर था उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन अपन ने क्या है पूछा है, विच हैज बीन आस्क्ड इन द रिविजनरी टेस्ट पेपर। थोड़ा सा ये सिस्टम आज स्लो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अदरवाइज यू हैव इट मस्ट बी अ मच बेटर प्रेजेंटेशन। तो ये अपन ने जो किया है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर जो 14th था वो हमने क्या है डिस्कस किया है अभी, जो एक ऑब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्टिव बड़ा क्वेश्चन था।